Good morning, students. I am starting the fourth chapter, Thinkers, Beliefs and Buildings, Cultural Developments between the period 600 BCE to 600 CE. This lesson has three main topics: thinkers, their beliefs, and buildings. Thinkers means the person who thinks a lot, the person who thinks for the welfare of the society, the person who thinks for the life, his beliefs and the beliefs of the people. And another thing, buildings, different type of monuments, different types of buildings that are existed at present time, made by different rulers, giving some messages to the people. So this lesson will consist mainly the concept of some thinkers, especially Mahatma Buddha and Mahavir Swami, their teachings, and the buildings like Sachi Stupa, Amravati Stupa, and others also. So let's begin. What are the main sources which gives us the information about this period? So the main sources are Buddhist text, Jain text, and Brahmanical text. Whatever the text books available, epics available, and other literary sources are available of this period, gives us the idea of the cultural developments of this period. Okay, and some other physical things other available like inscription, buildings, monuments available of this time, which were made by different types of people of this period. So first main topic is first millennium BC is regarded as a turning point in world history regions. So you will understand that why the first millennium BCE is regarded as the turning point in world history. Okay, because the period from 600 BCE to 600 CE, the total period of 1200 years is very important for the cultural developments. So we will discuss it. So we will write down the first question. What are the regions? What are the regions to describe mid first millennium BCE as a turning point in world history? What are the reasons behind to call mid first millennium BCE as a turning point in world history? Means मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE को वर्ल्ड हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या हुआ इस पूरे पीरियड में जो ये पूरे वर्ल्ड के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई? तो फर्स्ट रीजन की आप साइड हेडिंग लिखेंगे इमरजेंस ऑफ थिंकर्स. फर्स्ट साइड हेडिंग लिखेंगे आप इमरजेंस ऑफ थिंकर्स. डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर. It was the period of emergence of different types of thinkers in different places of the world, like Zarathustra in Iran, Kongzi in China, Socrates, Plato and Aristotle in Greece, Mahavir and Gautam Buddha in India. So different types of people were emerged, different types of main thinkers were emerged all over the world, who made a lot of impact of the people of their respective areas. Okay, so these are some famous names of that period. What did they do? They tried to understand the mysteries of existence and relationship between the humans and cosmic order. क्या काम किया उन लोगों ने? उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि जो ह्यूमन और जो कॉस्मिक ऑर्डर मीन्स स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जो उनके बीच में क्या रिलेशन है. एक डिवाइन पावर जो है जिसने पूरे
ब्रह्मांड को, पूरी यूनिवर्स को जिसने बनाया है, उसके बीच में और एक मनुष्य के बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्यों? क्योंकि हमको बनाया है एक डिवाइन पावर ने, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नहीं देखा है। और वाट एवर द थिंग्स आर अवेलेबल एट प्रेजेंट टाइम, वी डायरेक्टली रिलेट टू विद द पावर। ओके, हम जनरली ये कहते हैं कि भगवान ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इट इज़ द वर्क ऑफ द नेचर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। सो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड कॉस्मिक ऑर्डर। तो ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही अपन लिखेंगे। दूसरे पॉइंट की साइड हेडिंग हम लिखेंगे इमरजेंस ऑफ बिग सिटीज एंड किंगडम्स। Emergence of big cities and kingdoms. We have discussed earlier that during 6th century BCE, different types of Mahajanpadas like Magadha, Kausal, Vajji emerged mainly in the Ganga Valley. Okay, the main area present day in Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh. Okay, so in those areas different types of Mahajanpadas were emerged, different types of big cities emerged in that period only. So the development of these big cities and kingdoms brought so many social and cultural changes in the life of the people. ठीक है, कैसे चेंजेस लाए गए कि लोगों की सोशल लाइफ, लोगों की इकोनॉमिक लाइफ में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। जैसे इस टाइम पे ही पहली बार जो है मॉनेटरी सिस्टम, कॉइन्स का चलन शुरू हुआ, सिक्कों का चलन शुरू हुआ इस टाइम पे। ठीक है, एक और काम का पॉइंट इसमें कि इसी टाइम पे जो था बड़े बड़े किंगडम्स के आने के कारण एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ। तो इस तरीके से पॉलिटिकल लाइफ ने सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ को भी इम्पैक्ट डाला था। तो ये मेन रीजन्स थे जिसके कारण से मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। नेक्स्ट टॉपिक कम्स द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस। द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन मीन्स वेरी सिंपल, हम हिंदी में समझें इसको तो यज्ञों की व्यवस्था, यज्ञ हवन जो लोग आज भी करते हैं उस समय भी करते थे। सो देयर आर 4 वेदास इन इंडियन ट्रेडिशन। ऋग्वेद विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा अवेलेबल, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, these were the main 4 Vedas. So among 4 of them, the Rig Veda was first written between the period 1500 BCE to 1000 BCE. ओके, ध्यान रखिएगा आप, यहाँ 100 लिखा है, एक्चुअल में 1000 BCE है। तो 500 साल के पीरियड में ऋग्वेदा लिखा गया। ऋग्वेदा में क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ हाइम्स इन प्रेज ऑफ variety of deities, especially Agni, Indra and Soma. तो Agni, Indra, Som, these are the different types of deities whose people worship for different types of purpose. तो इन देवी देवताओं के प्रेज में डिफरेंट टाइप्स के हाइम्स मतलब स्तुतियाँ लिखी गई हैं, श्लोक लिखे गए हैं ऋग्वेद में। जैसे ये मानते हैं हम, इट इज सपोज दैट कि इंद्र भगवान पानी गिराने के लिए, बारिश कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अग्नि जो आग जलती है, जो अग्नि देवता उसके होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के देवी देवता उस समय होते थे जिनको डिफरेंट पर्पस के लिए पीपल कॉल करते थे, उनकी स्तुति करते थे, उनकी वर्शिप करते थे। ओके, सो और वॉट एवर द हाइम्स वेयर रिटन इन द ऋग्वेदा, these hymns were chanted during the sacrificing of different types of sacrifices. Okay, like लिखा हुआ यहाँ पर आप देखिएगा, these hymns were chanted when the sacrifices were performed and people prayed for cattle, sons, good health, long life and other things.
तो जब लोग प्रार्थना करते थे, पूजा पाठ करते थे कैटल्स की प्राप्ति के लिए, सन के लिए, गुड हेल्थ के लिए, तो जब भी सेक्रीफाइस करते थे, यज्ञ हवन करते थे, तो इन मंत्रों का उच्चारण या चैंटिंग की जाती थी जो ऋग्वेद में लिखे गए हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस वेयर परफॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड, लाइक राजसूय, लाइक अश्वमेध. ये लिखे हुए हैं, देखिए आप 4th लाइन में, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ. डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ और सेक्रीफाइसेस वेयर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड by the different types of people, by the different types of ruling elites. जैसे कि अश्वमेध यज्ञ जो है, अश्वमेध जो सेक्रीफाइस था राजाओं द्वारा, किस तरीके से किया जाता था कि एक हॉर्स को राजा अपने स्टेट से छोड़ता था और वो हॉर्स जिन एरियाज से होकर गुजरता था, यदि उन एरियाज के किसी भी रूलर ने उस हॉर्स को नहीं रोका, तो वो सारा एरिया जिसका ये हॉर्स होता था उसका हो जाता था. क्लियर है? सो ये अश्वमेध सेक्रीफाइस कहलाता था. ऐसे ही राजसूय यज्ञ होता था. व्हेन द थ्रोन वाज गिवन टू द न्यू किंग, देन द राजसूय सेक्रीफाइस वाज परफॉर्म्ड बाय द रूलिंग क्लासेस. तो ये सेक्रीफाइसल ट्रेडिशंस हैं उस समय के. अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, न्यू क्वेश्चंस इन द अर्ली पीरियड. क्या था इस पीरियड में? बिकॉज सो मेनी थिंकर्स इमर्ज लाइक महावीर एंड गौतम बुद्धा इन इंडिया, जरथुस्ट्र इन ईरान, एरिस्टोटल, प्लेटो इन ग्रीस. सो द पीपल वेयर क्यूरियस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दे वांटेड टू नो. Why they were eager to know? Because these people gave the idea of all these things. Like they wanted to know what is the exact meaning of life, why we are living, what happens after the death, is there any life after the death, or anything like rebirth is happened or not. So the people were asking these types of questions from themselves also and from these thinkers also. Okay, so they started the questioning of these old traditions, like doing sacrifices and following the different types of worships, just following the different type of rituals and customs given by the different types of Brahmins and other peoples. Okay, so these things were questioned in that time. नेक्स्ट टॉपिक आता है डिबेट्स एंड डिस्कशन कुटाग्रशाला. कुटाग्रशाला मीन्स अ प्लेस वेयर डिफरेंट पीपल डिड द डिबेट. ओके, ये 3rd लाइन में लिखा हुआ देखिएगा आप. कुटाग्रशाला लिटरली मीन्स हट विथ अ पॉइंटेड रूफ और इन ग्रुप्स वेयर ट्रेवलिंग मेंडिकेंट्स हॉल्टेड. तो कुटाग्रशाला एक हट होती थी जहाँ पर ट्रेवलिंग मेंडिकेट्स, मतलब वन प्लेस टू अदर प्लेस जाने वाले लोग, विचारक या थिंकर्स रुकते थे और डिबेट करते थे डिफरेंट इश्यूज़ पे. क्या था उस टाइम पे? There were as many as 64 sects or schools of thought. Lively discussion and debates were took place between the teachers and these schools of thought. सोचिए आप, 64 schools of thoughts. Okay, means different types of people made their different types of thinking styles. They were thinking in different types of manner. Okay, so they made their own sect. Kutagasara were the places where the debates of teachers who tried to convince one another and lay persons about the validity of their philosophy took place. As I told you, there were 64 sects or schools of thoughts. So people wanted to convince each others about their thoughts.
वो चाहते थे कि हमारे थॉट का ज़्यादा एक्सपांसन हो, हमारे विचारों को दूसरे लोग अडॉप्ट करें. सो दे वेयर डूइंग द डिबेट्स इन कुटाग्रशाला टू accept their thoughts by the other people. Mahavira and Buddha questioned the authority of the Vedas. Gautam Buddha and Mahavir Swami raised the voice against the Vedas. They said that these Vedas have not any authority and people should not follow these Vedas. Instead of this, they emphasized on individual agency. They said that the main importance of a particular person, not of these epics, not of these books. So people must contain and must give importance to their own. They suggested men and women could strive to attain liberation from trials and tribulations of worldly existence. उन्होंने कहा कि व्यक्ति को, a man don't need any type of medium or any type of what should I say, any type of person to get the liberation. मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है, भगवान की कृपा पाने के लिए हमें किसी मीडियम की या माध्यम की ज़रूरत नहीं है. पीपल खुद के प्रयासों से, लोग अपने खुद के एफर्ट से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं. दिस डिफर्ड फ्रॉम द ब्राह्मणिकल position as they believed that individual's existence was determined by his or her birth in a specific caste or gender. Okay, जबकि ब्राह्मणिकल थ्योरी क्या थी कि that this world is made by the God and the position of every person of the society, if they belong to rich society, if they belong to poor society, if they are on the ruling side or on the common man side, all this is decided by the God. All these things are written in the Vedas. Okay, उनका कहना था ये सब आपके जन्म से ही शुरू हो जाता है कि आपका जन्म किस जाति में हुआ है, आपका जन्म किस धर्म में हुआ है, आपका जन्म अमीर परिवार में हुआ है या गरीब परिवार में हुआ है. ये सब गॉड पहले से लिख करके भेजता है और ये सब डिपेंड करता है आपके कर्मों पर. ये ब्राह्मणिकल थ्योरी है. और जबकि बुद्धिस्ट थ्योरी क्या कहती थी कि ऐसा नहीं है, जाति धर्म जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है. पीपल अपने एफर्ट्स के थ्रू ही, अच्छे कर्म करके ही ईश्वर के नज़दीक जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द टीचिंग ऑफ महावीरा, या और करके लिखेंगे आप डिस्क्राइब द टीचिंग ऑफ जैनिज़्म. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द मैसेज ऑफ महावीरा, बेसिक आइडियाज़ ऑफ जैन फिलॉसफी. तो 1 मार्क का पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये लिखा हुआ है, महावीरा वाज प्रेसिडेड बाय 23rd तीर्थंकर्स. महावीर 24वें नंबर के, 24th नंबर के तीर्थंकर थे. इसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे. तो तीर्थंकर क्या होते हैं? द तीर्थंकर्स आर टीचर्स हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एक्सिस्टेंस. ओके, तीर्थंकर आप सिंपल मीनिंग समझ लिए, who guide men and women, सिंपल सी बात. ओके, सो महावीर स्वामी वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म. इसके पहले 23 तीर्थंकर और जैन धर्म में हो चुके थे. बट द रोल ऑफ महावीर स्वामी वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही स्प्रेड द जैनिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया एज वेल एज. आज भी आप देखिए बहुत सारे जैन धर्म के फॉलोअर्स इंडिया में हैं. ये सारे एफर्ट्स जो हैं किस लिए हैं? ये सारा कुछ एफर्ट्स जो महावीर स्वामी ने लगाया था उसके कारण ये पॉसिबल हो पाया है. तो उनकी मेन टीचिंग्स क्या थी महावीर स्वामी की? पहली टीचिंग्स है, आप इसको आंसर में लिखेंगे, द वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, इवन स्टोन्स रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ. साइड रीडिंग आएगी, वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड. क्लियर है? सिंपल लिखा हुआ है. उनका कहना था कि हर चीज़ में लाइफ है, स्टोन्स में, रॉक्स में, वाटर में, एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ दे हैव द लाइफ. ओके, सो वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल दोज थिंग्स. इट इज़ सेड बाय द महावीरा. सेकेंड पॉइंट है साइड रीडिंग, अहिंसा, कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा.
नो इंजरी टू लिविंग बीइंग स्पेशली टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। ये बड़ी सिंपल है अहिंसा का सिद्धांत कि हमें किसी भी ह्यूमन को, एनिमल्स को, प्लांट्स को या किसी भी लिविंग बीइंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। तीसरा पॉइंट है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। साइड डालेंगे आप साइकिल ऑफ बर्थ। तो उनका कहना था कि व्यक्ति का जन्म और पुनर्जन्म, बर्थ और रीबर्थ कैसे होता है, कर्म के अनुसार होता है। ठीक है, आप जैसे कर्म करेंगे आपका जन्म नेक्स्ट पीरियड में उसी तरीके से होगा। अच्छे कर्म होंगे तो आपको अच्छा एक फॉर्म मिलेगा नेक्स्ट टाइम जब आपका रीबर्थ होगा। तो इसलिए लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए, ये गौतम बुद्ध ने कहा। फोर्थ पॉइंट है एसेसिटिज्म एंड पीनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। ठीक है, लोगों को त्याग करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए यदि लोगों को कर्म से मुक्ति पानी है तो। ठीक है, यदि आपको बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से फ्री होना है तो आपको एसेसिटिज्म एंड पीनेंस पर फोकस करना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है? दिस कैन बी अटेन्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, देयर फोर मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेल्वेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिखेंगे महावीर या जैनिज्म की टीचिंग में। वर्ल्ड इज एनिमेटेड, अहिंसा, साइकिल ऑफ बर्थ और एसेटिज्म एंड पीनेंस इज रिक्वायर्ड टू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। इसके अलावा उन्होंने 5 वोज दिए, मतलब 5 शिक्षाएं दी मेनली जो हर जैन मॉन्क्स और नन्स को माननी चाहिए। टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, टू एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, टू एब्सटेन फ्रॉम लाइंग, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, टू एब्सटेन फ्रॉम पजेसिंग प्रॉपर्टी। तो ये पांचों जो मेन टीचिंग्स हैं, जो पांचों जो मेन सूत्र हैं, जो पंच लाइन्स हैं जैनिज़्म की, ये सारे जैन मॉन्क्स और नन्स को फॉलो करनी चाहिए, ऐसा महावीर स्वामी ने बताया। तो ये आंसर अपना 5वां पॉइंट यहाँ पजेसिंग प्रॉपर्टी तक आएगा। ये क्वेश्चन आज आप क्लास वर्क में लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।